Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I welcome you all in today's online session. As you all know that we are discussing biochemistry, that is chapter number 21 from your textbook. And the topic we are going to discuss today is the last topic of this chapter, that is minerals. So today we will discuss the biological importance of minerals and or you can say those minerals which have biological importance, and the sources and the functional importance of the minerals and the types of minerals. Here are some basic points that minerals are the substances found in food that your body needs for growth and health. Minerals are necessary for three main reasons. Number one, building strong bones and teeth. Number two, controlling body fluids inside and outside the cells. And number three, turning the food you eat into energy. Minerals are found in foods such as meat, cereal, fish, milk, and dairy foods, vegetables, fruits, and nuts, especially in dry fruits. And there are two kinds of minerals, macrominerals and trace minerals are microminerals. I'm going to elaborate the difference between the two later on. Okay, here comes a brief introduction of these two types of minerals. Macrominerals are the minerals your body needs in large amount, and your body needs just small amount of trace minerals are microminerals. So they are characterized on the basis of their requirement by the body. You need to remember over here that minerals are inorganic elements needed by the body for the following functions, that is, building tissues, regulate body fluids, assist in body functions, help perform body structures. So, these are the different functions for which your body requires minerals. But the important point you need to remember over here that when you talk about minerals, you are talking about inorganic elements, right? And they remain as ash when food is burned. तो जब भी जलाया जाता है एंड पर जो ऐश बचती है दैट ऐश इज़ एक्चुअली ऑफ मिनरल्स. So once again, here is a classification of minerals. Major minerals required in amounts greater than 100 milligram a day by your body, and sometimes they are termed as macrominerals. And trace minerals are required in diet in amounts lesser than 100 milligrams a day, and sometimes are termed as microminerals. So dear students, now I am going to talk about the minerals one by one, their sources, functions, and the effects their deficiency or toxicity produce in the body. तो मैं एक एक करके उन सारे मिनरल्स की बात करूँगी, उनकी सोर्सेज की, उनके फंक्शंस की, और उनकी अगर डेफिशिएंसी हो जाए या टॉक्सिसिटी हो जाए तो क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं उन पर बात करेंगे. फर्स्ट यू नीड टू रिमेंबर कि डेफिशिएंसी का मतलब है कि जितनी अमाउंट आपकी बॉडी को चाहिए उससे कम हो आपकी बॉडी में, एंड टॉक्सिसिटी का मतलब है कि रिलेटिवली हाई कंसनट्रेशन ऑफ द मिनरल्स देन दैट नीडेड बाय द बॉडी. तो पहले नंबर पर बात करते हैं कैल्शियम में. सोर्सेज होते हैं इसके मिल्क, चीज़ एट्सेट्रा, और बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पर मेंशन है कैल्शियम के इट असिस्ट इन डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ. आपको पता है कि जब आपकी टीथ की बात की जाती है तो कैल्शियम की बात की जाती है, जब आपकी बोन्स की बात की जाती है तो आप उसमें कैल्शियम की बात करते हैं. ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, आपको पता है आपकी बॉडी में एक नर्वस सिस्टम है जो कि सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है. तो उन सिग्नल्स की ट्रांसमिशन में, उन नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन में कैल्शियम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. देन ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, नॉर्मल हार्ट एक्शन एंड सो ऑन. अब अगर इसकी डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी हो जाए, बेसिकली डेफिशिएंसी से रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इस टेबल के अंदर, कि अगर कैल्शियम की कमी हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक डिज़ीज़ हो जाती है जिसमें आपकी आपकी जो बोन्स हैं उनकी डेंसिटी कम हो जाती है, यानी कि पोरस बोन्स हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं आपकी बोन्स. एंड देर आर अदर एग्जांपल्स ऑफ ऑस्टियोमलेसिया एंड राइकेट्स एंड टेटनी एंड रिटार्टेड ग्रोथ. आपकी ग्रोथ उतनी नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए, एंड पुअर टीथ इन बोन फॉर्मेशन. तो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स हैं. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू द पिक्चर्स ऑफ अ फ्यू ऑफ दीज केसेस. जैसे कि ऑस्टियोप्रोसिस है, इट मीन्स पोरस बोन्स. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय लो बोन डेंसिटी आर mass and fragile bones. So reduced
अमाउंट ऑफ बोन टिश्यूज़ होते हैं, बोन्स की डेंसिटी कम हो जाती है और पोरस बोन्स हो जाती हैं, जिससे वीकनेस हो जाती है। आपको पता है कि आपका बोन्स का स्ट्रक्चर ही इसलिए है, ये पूरे का पूरा फ्रेमवर्क आपकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए है, इसकी मूवमेंट के लिए है। तो अगर ये वीक हो जाएंगी तो डेफिनेटली इट कैन कॉज हैवक, राइट? Now talking about rickets and osteomalacia, these two conditions have been shown by the diagrams in this slide. You can see rickets is softening of bones in children, potentially leading to the fractures and deformity, and osteomalacia again, bones loses calcium and becomes softer and may deform, right? Now this is the condition of tetany, involuntary contraction of muscles. आपका control नहीं रहता ना muscle contraction के ऊपर. Here is a condition. Now coming towards the second mineral we are going to talk about, that is phosphorus. Here are different sources mentioned: milk, cheese, lean meat, poultry, fish, etc. इसीलिए इन चीज़ों को, इन नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करने का ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाता है रादर देन कैंड प्रोडक्ट और प्रोसेस्ड फूड की निस्बत. एंड इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं. द फंक्शंस हैव बीन मेंशन्ड ओवर हियर. आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द डेफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी, यानी बॉडी में इनके कम या हो जाने या ज़्यादा हो जाने से जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो है पुअर टूथ एंड बोन डिफॉर्मेशन, वीकनेस है और बहुत सारी कंडीशंस हो जाती हैं. नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सोडियम. बेसिकली ये वो डिटेल्स हैं जो आपकी बुक में इस तरीके से करेक्टराइज नहीं हुई हुई. दैट इज़ वाई आई एम गोइंग टू दैट इज़ वाई आई एम शेयरिंग विद यू दीज डिटेल्स, सो दैट यू मे हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर कि आपने जब बात करनी है किसी मिनरल के हवाले से तो आपने किन किन चीज़ों पे बात करनी है और कैसे करेक्टराइज करना है उस पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को. सो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सोडियम हैव बिन गिवन. इसका एक बहुत बड़ा मेजर सोर्स है वो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो आप यूज़ करते हैं. देन बीफ्स, एग्स, पोल्ट्री एक्सेट्रा. मॉडरेट अमाउंट्स इन ब्रेड्स एंड वेजिटेबल्स में भी लेते हैं आप लोग. इन लार्ज अमाउंट्स इन प्रोसेस्ड फूड से बहुत ज़्यादा सोडियम आपकी बॉडी में जाता है. और इट हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ अ फ्लूइड बैलेंस. आपको पता है कि आपके ब्लड के अंदर और आपके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर फ्लूइड्स की एक प्रॉपर कंसनट्रेशन होती है जो बहुत ज़्यादा होती है. इम्पॉर्टेंट ऑस्मो रेगुलेशन वगैरह के लिए ये बायोलॉजिकल डिटेल्स हैं जो कि बायोलॉजी के स्टूडेंट्स इनके ऊपर ज़रा ज़्यादा डिस्कशन करते हैं. बट बीइंग द स्टूडेंट ऑफ केमिस्ट्री और हमने क्योंकि उतनी ही डिटेल्स यहाँ पर लेनी है जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है या आपकी डेली लाइफ में जिन चीज़ों को आप ऑब्जर्व करते हैं और देखते हैं, दैट इज़ वाई वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस मैनी ऑफ दीज टर्म्स इन डिटेल. तो आप ये बात करते हैं कि ये ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सिस में रोल प्ले करते हैं, एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करते हैं और मसल कॉन्ट्रैक्शन में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो नोज़िया की कंडीशन होती है. यू नीड टू रिमेंबर कि नोज़िया की कंडीशन जो है उसमें आप अमूमन ये लेते हैं कि दिल ख़राब होना या सर चकराना, इस तरीके की कंडीशन हो जाती है. एग्जॉशन हो जाती है, मसल क्रैम्प्स आते हैं आपको, आपकी जिससे आप आम ज़ुबान में कहते हैं कि खल्लियाँ पड़ गई हैं ना. टॉक्सिसिटी अगर इसका लेवल बढ़ जाए बॉडी में तो हाइपर टेंशन हो जाती है, ईडिमा की कंडीशन हो जाती है. So this is the condition. These pictures are showing you the condition of edema. Now going to talk about the chloride. Table salt, eggs, seafood और milks इसके sources हैं. ये gastric acidity or regulation of acid base balance in the body, in the maintenance of the fluids and electrolyte balance, इन सारी की सारी चीज़ों के लिए क्लोराइड बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड इसकी डेफिशिएंसी टॉक्सिसिटी के आप कॉलम में देखें तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन है कि इम्बैलेंस इन गैस्ट्रिक एसिडिटी, इम्बैलेंस इन द ब्लड पीएच, नोजिया, एग्जॉशन, ये सारी की सारी कंडीशंस क्लोराइड के इम्बैलेंस की वजह से हो सकती हैं. Now talking about magnesium, you can remember all these on your finger points कि आपने बात करनी है कैल्शियम की, सोडियम की, मैग्नीशियम की, जिंक की, आयरन की. इन सारे मिनरल्स के बारे में आपको बेसिक डिटेल्स का पता होना चाहिए कि इनकी सोर्स हैं ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और होल ग्रेन्स और बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें, बनाना, चॉकलेट, सी फूड, कोका बीन्स, ये सारी मैंशनड हैं. और इनके फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट. इसका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ एटीपी, राइट, and the nerve transmission and muscle activity etc. Constituent of the bones, muscles and RBCs. RBCs का मतलब है रेड ब्लड सेल्स आपके बॉडी के. तो अब ये है कि मेंटल, इमोशनल एंड मसल डिसऑर्डर्स होते हैं, मस्कुलर डिसऑर्डर्स हो जाते हैं इसकी डेफिशिएंसी या टॉक्सिसिटी की वजह से. Now talking about iron, this is one of the very important mineral.
दो इट इज़ अ ट्रेस मिनरल बट इट होल्ड्स अ ग्रेट पोटेंशियल, और इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है आपकी बॉडी में कि ये कहाँ से आप ले सकते हैं। सोर्सेज तो मेंशन है, ये बड़ी कॉमन सोर्सेज हैं, लेकिन अगर इसकी फंक्शन की बात करें तो इट ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको इस बात का पता होना चाहिए कि हीमोग्लोबिन जो है, दैट इज़ द ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन ऑफ आर बी सीज, रेड ब्लड सेल्स। आयरन जो है इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस या मॉलिक्यूल। तो वो मॉलिक्यूल जो होता है रेड ब्लड सेल का ऑक्सीजन कैरिंग मॉलिक्यूल, दैट इज़ हीमोग्लोबिन, उसमें सेंट्रल इंपॉर्टेंस जो रखता है वो आयरन होता है। ठीक है, सो दैट इज़ वाई इट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में ये रोल प्ले करता है, जो मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ना टॉकिंग अबाउट इट्स डेफिशिएंसी, अगर इसकी डेफिशिएंसी बॉडी में हो जाए तो एक ऐसी डिजीज़ होती है, एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसको आप एनीमिया का नाम देते हैं, और एनीमिया वाले पेशेंट्स के अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। ये देखें, दिस इज़ द कंडीशन दैट इज़ शोइंग द नॉर्मल अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स एंड एनीमिक अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल्स, यानी रेड ब्लड सेल की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। एंड सिम्टम्स इसके होते हैं वीकनेस, फटीग, डिजीनेस, लॉस ऑफ वेट एट्सेट्रा। Now, dear students, this diagram is showing you the conditions caused by the deficiency of iron. देखें, iodized salt, ये सी फूड से आप सॉरी नॉट आयरन, इट्स आयोडीन। सो ये एक नेक्स्ट मिनरल है जिसकी पहले मैंने आयरन की बात की है, अब मैं आयोडीन की बात कर रही हूँ। और आयोडीन जो है आप आयोडाइज्ड सॉल्ट से लेते हैं और सी फूड से लेते हैं। और आयोडीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए, इन द रेगुलेशन ऑफ द बेसल मेटाबॉलिक रेट। और इससे बहुत सारी इसकी डेफिशिएंसी या इसकी टॉक्सिसिटी से बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। और एक कंडीशन है गोइटर की, जिससे आपने अमूमन देखा होगा कि गर्दन के करीब एक लंप सा बन जाता है, दैट इज़ टर्म्ड एज गोइटर। तो गोइटर की कंडीशन इस वजह से होती है, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। नाउ टॉकिंग अबाउट जिंक, eggs, milk, etc., seafood, etc. These are the sources of zinc, and the important functions have been mentioned in this table. Wound healing is one of the very important function performed by zinc, and this is essential for growth. ये भी एक बहुत important इसका function है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो डवार्फिज्म यानी कद का छोटा रह जाना, ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। एनीमिया हो जाता है, लॉस ऑफ एपेटीट यानी आपकी भूख नहीं लगती, और स्किन के अंदर चेंजेस आती हैं, और इम्पेयर्ड वूंड हीलिंग के आपके जो आपके वूंड्स होते हैं, ज़ख्म होते हैं, वो नहीं भरते, इस किस्म के मसाइल हो जाते हैं जिनके ना होने से। सो यू कैन सी दिस इज़ द कंडीशन ऑफ डवार्फिज्म यानी कद का छोटा रह जाना। दिस इज़ द स्किन लेशंस, और इसमें स्पॉट्स बन जाते हैं स्किन में डिफरेंट किस्म के। सो डियर स्टूडेंट्स, हेयर इज़ अनदर मिनरल दैट इज़ फ्लोराइड। फ्लोरिडेटेड वाटर से ये आता है, सी फूड से आता है, ये इसके सोर्सेज हैं। एंड इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस टू टूथ डिके एंड कंपोनेंट्स ऑफ बोन्स एंड टीथ, ये कंपोनेंट बोन और टीथ का कंपोनेंट है, और टूथ डिके को ये प्रिवेंट करता है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपके दांतों का डिके होना शुरू हो जाता है, और पॉसिबली ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन भी हो जाती है जिसमें वीकनिंग ऑफ बोन्स होता है। और अगर इसकी कंडीशन ज़्यादा हो जाए, इसका कंसनट्रेशन बॉडी में कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाए जितनी आपको रिक्वायर्ड है, तो क्या होता है कि फ्लोरोसिस की कंडीशन हो जाती है। अभी मैं आपको एक डायग्राम शो करूँगी जिसमें फ्लोरोसिस की कंडीशन जो की जा रही है। एंड दिस इज द डीकलरेशन ऑफ टीथ आर मॉटलिंग, सो यू कैन सी इट ओवर हियर। दिस इज़ द कंडीशन ऑफ फ्लोरोसिस, जिसके अंदर जो है डीकलरेशन ऑफ द टीथ हो रहा है और डिके ऑफ द टीथ हो रहा है और दांत बिल्कुल ख़राब हो रहा है। सो these were the different minerals and the details relevant to those minerals that you need to remember regarding your paper point of view। और इसके अलावा आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। So that is all for today. Thank you so much. Stay blessed. Stay safe.